Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Commental Guru. Today, I will discuss educational measurement. It is the part 1 video of measurement and evaluation. Then, in subsequent parts, I will discuss about the test, assessment, and evaluation. Today, I will discuss about educational measurement. Please, my friends, subscribe my channel, comment my channel, share my channel so that you can get my upcoming videos. So when you detect any type of lacuna or any type of shortcomings, please forgive me. Just I am doing video only for you. I do not want to waste more time. Now I am going to discuss educational measurement. My YouTube channel, you see, if you want to contact with me, it is my WhatsApp number. If you need PDF, then you contact with me through my WhatsApp. My number is 8327782034. And also, please join my Telegram channel so that in posting time you will find some new videos. So, question number 1. Dash refers to the process by which the attributes or dimensions of some physical object are determined. Assessment, test, measurement, evaluation, 4 options are there. जब हम कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट को न्यूमेरिकली ऑब्जर्व करते हैं तो उसको हम मेजरमेंट बोलेंगे, राइट? एट्रीब्यूट्स और डायमेंशंस ऑफ सम फिजिकल ऑब्जेक्ट, क्लियर? Dimensions, area, volume, when you want to calculate area of the land, when you want to calculate dimensions, volume of water contained by the glass. So similarly, some physical object you want to measure the weight of any type of commodity. Okay, so in this case actually we need the help of measurement. So measurement refers to the process by which the attributes or dimensions of some physical object are determined. It is very important one. So answer is, it is bit C. Answer is bit C. It is measurement. Question number 2, you see the definition. It is an act or process of giving numerical value to anything for determining the status of the thing precisely on the basis of some scientific rules and some standardized norms. Example: height, weight, length, age, temperature, area, volume, etc. So all these things basically, okay, we measure through scientific rules and some through standardized norms, right? So जब हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को ढूंढते हैं, when we are searching some numerical value of the object, when we give the numerical value of the attributes of the person, ठीक है? जैसे जो स्टूडेंट का एबिलिटी है, कि स्किल है, उसका एफिशिएंसी है, कि उसका पोटेंशियलिटी है, कि वी वांट टू मेजर द इंटेलिजेंस ऑफ द स्टूडेंट. सो इन दिस केस हम मेजरमेंट का हेल्प लेते हैं, राइट? जब हम कोई भी चीज में न्यूमेरिकल वैल्यू को ढूंढते हैं, ओके, वो काम किसका है? मेजरमेंट का है, राइट? सम एग्जांपल्स ऑलरेडी आई हैव गिवन. सो यू सी क्वेश्चन नंबर 2, measurement is the description of data in terms of a number. This is very important one. Who advocated this definition? It is the description of data in terms of number.
जब कोई डाटा को हम एक्सप्रेस करते हैं नंबर में, उसको हम मेजरमेंट बोलेंगे. सो हु एडवोकेटेड दिस डेफिनेशन? E.L. थोर्नडाइक, जेम्स एम ब्रैडफील्ड, J.P. Guilford, Norman E. Gronald. So 4 options are there. So here answer is bit C. It is J.P. Guilford. It is very important definition. जब कोई डाटा को हम नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम मेजरमेंट बोलेंगे. When any type of data it is represented in the form of number, then it is called measurement. It is the definition of J.P. Guilford. Right answer is bit C. Question number 3. Here another definition. Measurement results are some score or numerical value and quantitative descriptions of the pupils. जब हम स्कोर, न्यूमेरिकल वैल्यू और कोई प्यूपिल्स का क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शंस, क्लियर, तो उसी चीज को बेसिकली हम मेजरमेंट बोलते हैं. इट इज द रिजल्ट. मेजरमेंट रिजल्ट्स आर सम स्कोर और न्यूमेरिकल वैल्यू एंड क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शंस ऑफ प्यूपिल्स. ओके, जब एग्जाम होता है तब हम पूछते हैं कि क्या स्कोर है. Okay, when the examination result is coming, we are asking the students about the score. So basically numerical value. कि any cricket match चल रहा है, when the match is going on, we are having curiosity to know about the score of the team. Quantitative descriptions of the pupils. So जब हम कोई स्टूडेंट का क्वांटिटेटिव, उसका हाइट क्या है, उसका वेट क्या है, उसका एग्जाम में क्या परफॉर्मेंस है, कितना परसेंटेज मार्क वो रखा है, तो ये सब चीज को जब हम ढूंढते हैं उसी को मेजरमेंट कहा जाता है. वो ये किसका डेफिनेशन है? E.L. थोर्नडाइक, जेम्स एम ब्रैडफील्ड, J.P. Guilford, नॉर्मन E. ग्रोनाल्ड. सो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इज D. ओके, आंसर इज D. इट इज नॉर्मन E. ग्रोनलुंड. Right answer is BT. It's very important definition. Clear? Question number 4. Dash is the assignment of numbers to objects or events according to rules. Assignment of numbers to objects or events according to rules. Rules के हिसाब से जब हम ऑब्जेक्ट्स को नंबर असाइन कर देते हैं, ठीक है, इट इज द असाइनमेंट. आपको देखा होगा कि जो प्लेयर्स है उनका नंबर होता है, चाहे फुटबॉल गेम्स की, क्रिकेट गेम्स, उनका जो जर्सी है उसके ऊपर नंबर होता है, उनको नंबर असाइन किया जाता है. ये नहीं है कि जैसे एक प्लेयर का जर्सी में 6 है कि वो जाकर एक्चुअली 6th स्पॉट में वो खेलेगा, वो बैटिंग करेगा. ये सब कुछ नहीं है. रूल्स के हिसाब से नंबर असाइन कर दिया जाता है प्लेयर्स को, ठीक है. तो डैश इज द असाइनमेंट ऑफ नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स अकॉर्डिंग टू रूल्स. सो इट इज कॉल्ड मेजरमेंट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. मेजरमेंट इज द असाइनमेंट ऑफ नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स अकॉर्डिंग टू रूल्स. राइट आंसर इज बिट C. अनदर 2 डेफिनेशन. मेजरमेंट इज द असाइनमेंट ऑफ नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स. ये है स्टॉर्म. ओके, ये स्टॉर्म का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, जब नंबर असाइन किया जाता है, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर नंबर असाइन किया जाता है, और कोई इवेंट को हम, जो भी डिफरेंट इवेंट्स होगा उसको हम नंबरिंग कर देंगे, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, नंबर दे देते हैं उसको 1 2 3 करके. रूल के हिसाब से उसको हम मेजरमेंट बोलेंगे. इट इज द असाइनमेंट ऑफ नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स अकॉर्डिंग टू रूल्स. इट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टॉर्म. अनदर वेरी पॉपुलर डेफिनेशन, इट इज गिवन बाय स्टैनली एंड हॉपकिंस. We consider construction, administration and scoring of test as the measurement process. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. जब हम कोई टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट टेस्ट को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा पर्टिकुलर एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में, स्पेसिफिक सब्जेक्ट में. हम स्टूडेंट्स का एबिलिटी को मेजर करना चाहते हैं, तो फर्स्ट एक टेस्ट के लिए क्वेश्चन को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा. जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन है,
देन स्कोरिंग दिया जाएगा। ओके, तो इसको हम मेजरमेंट प्रोसेस बोलेंगे। इट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैनली एंड हॉपकिंस। इट इज ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। कंस्ट्रक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग ऑफ टेस्ट एज द मेजरमेंट प्रोसेस। राइट, इस डेफिनेशन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन, एजुकेशनल मेजरमेंट और मेजरमेंट इन एजुकेशन। थोड़ा एजुकेशनल मेजरमेंट के ऊपर जाएंगे। यू सी, व्हेन द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑकर्स in the field of education to measure the dash. When the process of measurement occurs in the field of education to measure the dash, a good habit of the students, outcomes of learning, outcomes of behavior, change in attitude of students. So it is outcome of learning. Answer is bit B. When the process of measurement occurs in the field of education to measure, तो जो एजुकेशन फील्ड में जो मेजरमेंट का इंपॉर्टेंस होता है कि जो मेजरमेंट का बात जब आता है, हम क्या मेजर करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स कैन बी मेजर्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, वी मेजर आउटकम्स ऑफ लर्निंग। ओके, जो स्टूडेंट्स को जो नॉलेज मिलता है, ठीक है, जो students basically whether they understand the concept properly or not. ओके, ये सब चीज जानने के लिए हम आउटकम्स को जाते हैं। बेसिकली उनका एग्जाम कंडक्ट होता है, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन होता है, टेस्ट का कंस्ट्रक्शन, फिर एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, वो एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है, तब स्कोर दिया जाता है, तब हमको पता चलता है कि क्या है लर्निंग का आउटकम्स, क्या है, what type of things actually learned by the students, what would be the basically outcome of learning. Okay, so we measure it. So it is very very important one, outcomes of learning. When the process of measurement occurs in the field of education to measure the outcomes of learning, answer is bit B. ये दिया है, देख लीजिए। When the process of measurement occurs in the field of education to measure the outcomes of learning is known as educational measurement. educational measurement का definition आपको कोई भी वाइवा में पूछ सकता है। someone when you attend viva, then also you can face the question what is the meaning of educational measurement. So basically the process of measurement occurs in the field of education only to measure the outcomes of learning. Next one, which statements are true one? Here some statements given. In educational measurement there is absolute 0 point. ये गलत है। absolute, there is absolute 0 point. No, ये नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूं। सपोज एक स्टूडेंट का मैथ्स में 0 है, मैथमेटिक्स में 0 है। ये नहीं है कि उसका 0 नॉलेज है मैथमेटिक्स में, उसका नॉलेज है, मगर उसको सपोज क्वेश्चन का लेवल जो है वो डिफिकल्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया और वो अटेम्प्ट नहीं कर पाया, मगर उसका नॉलेज है। उसका मैथमेटिक्स में उसका 0 नॉलेज नहीं है, मगर उसको 0 मिला। और कोई एग्जाम जब कंडक्ट होता है उसको 20-30 मिल जाता है। तो ऐसा नहीं, तो कोई एब्सोल्यूट एजुकेशनल मेजरमेंट देयर इज एब्सोल्यूट 0 पॉइंट। नो, देयर इज नो एब्सोल्यूट 0 पॉइंट। समझ में आ गया? ये नहीं है कि उसको मैथमेटिक्स में 0 मार्क मिला, क्या उसका 0 नॉलेज है मैथमेटिक्स में? ये नहीं है, उसका नॉलेज है, मगर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल ज्यादा हो गया, तो उसको 0 मार्क मिला। और कुछ दिन के बाद जब टेस्ट कंडक्ट होगा उसको 20-30-40 मार्क भी मिल जाएगा। ओके, ये गलत है। द यूनिट्स आर नॉट डेफिनाइट इन एजुकेशनल मेजरमेंट। द यूनिट्स आर नॉट डेफिनाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करेक्ट है। क्योंकि आप देखिए, कभी भी एक एग्जाम होता है तो एग्जाम में सभी स्टूडेंट्स का मार्क समान नहीं होगा। इन ए पर्टिकुलर टेस्ट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट सेम। कि एक स्टूडेंट वो डिफरेंट एग्जाम देता है, द पर्टिकुलर स्टूडेंट फेसिंग डिफरेंट एग्जामिनेशंस एंड स्कोर डिफरेंट मार्क्स, उसको सेम मार्क नहीं मिलता है। एक स्टूडेंट डिफरेंट टेस्ट देता है, उसको सेम मार्क नहीं मिलेगा। कि एक टेस्ट, ओके, स्टूडेंट्स
एक टेस्ट को फेस करते हैं, ये नहीं कहेंगे कि सभी स्टूडेंट्स का मार्क समान होगा। सो वही द यूनिट्स आर नॉट डिफिनाइट इन एजुकेशनल मेजरमेंट व्हेन द चाइल्ड फेसिंग एनी टेस्ट। ओके, सो आपको ये एग्जाम्पल दोनों को देना है कि different students facing the test and they secure different marks. So similarly, the child facing different test and getting different marks. तो यूनिट्स आर नॉट डेफिनेट, ये करेक्ट है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सिंबल्स, ये करेक्ट है। इट इज ए प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सिंबल्स। सिंबल दिया जाता है, जो मैच होता है, चाहे आप देखिए क्रिकेट की, फुटबॉल की, कबड्डी, उसमें रूल्स के हिसाब से जर्सी में ओके सिंबल दिया जाता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ऐसा नहीं है कि ये जो दिया जाता है उसको रैंक के हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं है। रूल के हिसाब से, यूनिवर्सल रूल के हिसाब से सिंबल दिया जाता है, ये करेक्ट है। इट कैन बी मेजर डायरेक्टली, ये गलत है। हम जब चाइल्ड का बिहेवियर को मेजर करते हैं, डायरेक्टली हम मेजर नहीं करेंगे चाइल्ड क्या है, उसका बिहेवियर को हम मेजर करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए बेसिकली जो एजुकेशनल मेजरमेंट है, इट कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली, मगर यहां पर इट कैन बी मेजर डायरेक्टली। नो, एजुकेशनल मेजरमेंट को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाएंगे। हम चाइल्ड का बिहेवियर को स्टडी करेंगे, तब उसको हम मेजर करेंगे कि उसका एबिलिटी क्या है, उसका एफिशिएंसी क्या है, उसका स्किल पावर क्या है, ठीक है, कि उसका एटीट्यूड क्या है। इट इज ए मीन्स टू एन एंड बट नॉट एन एंड इन सेल्फ, ये भी करेक्ट है। इट इज ए मीन्स टू एन एंड बट नॉट एन एंड इन सेल्फ, ये क्या है? तो हमको देखना पड़ेगा कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव को हमको अचीव करना है। एक चाइल्ड किस तरीके का ऑब्जेक्टिव्स को उसको अचीव करना है, व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी अचीव्ड बाय द चाइल्ड। तो इट इज ए मीन्स टू एन एंड बट नॉट एन एंड इटसेल्फ। तो आपको पता चल गया आंसर, IIII जो है वो आंसर है, IIII। तो आंसर इज बिट बी। अभी थोड़ा देखेंगे, उसके ऊपर दिया है कैरेक्टरिस्टिक्स इन एजुकेशनल मेजरमेंट। देयर इज नो एब्सोल्यूट 0 पॉइंट, मैं अभी बताया था, देयर इज नो एब्सोल्यूट 0 पॉइंट। इट एब्सोल्युटली करेक्ट है। फर्स्ट करेक्ट, देयर इज नो एब्सोल्यूट 0 पॉइंट, क्योंकि एक स्टूडेंट को 0 मार्क मिला कि हम ये समझेंगे कि उसका मैथमेटिक्स में नॉलेज 0 है। साइंस में 0 मार्क मिला, हम ये नहीं समझेंगे कि उसका साइंस में कोई नॉलेज नहीं है। अभी 0 मार्क मिला, क्वेश्चन लेवल डिफिकल्ट हो गया, ठीक है, क्वेश्चन का जो लेवल है वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मगर और एक टेस्ट कंडक्ट होगा, चाइल्ड को 20, 30, 40 मार्क्स मिल जाएगा। सो इन एजुकेशनल मेजरमेंट देयर इज नो एब्सोल्यूट 0 पॉइंट, राइट। ये फर्स्ट फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है। द यूनिट्स आर नॉट डेफिनाइट, द यूनिट्स आर नॉट डेफिनाइट इन एजुकेशनल मेजरमेंट। सपोज 40 स्टूडेंट्स एक टेस्ट अटेंड करेंगे, 40 स्टूडेंट्स अटेंडेड टेस्ट, so the marks of the 40 students are not same, the marks of the 40 students are varied one। 40 स्टूडेंट्स एक टेस्ट देंगे, 40 स्टूडेंट्स का मार्क क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। समझ में आ रहा है? वैसा ही एक स्टूडेंट वो डिफरेंट टेस्ट अटेंड करेगा, वन स्टूडेंट फेसिंग डिफरेंट टेस्ट एंड सिक्योरिंग डिफरेंट मार्क्स। एक स्टूडेंट डिफरेंट टेस्ट अटेंड करेगा, हम ये सोचेंगे कि वो सभी टेस्ट में उसको समान मार्क मिलेगा, ये तो नहीं, ठीक है। सो बेसिकली द यूनिट्स आर नॉट डेफिनाइट इन एजुकेशनल मेजरमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड को देखेंगे, इट कन्वेज ए सेंस ऑफ इंफिनिटी। सेंस ऑफ इंफिनिटी मीन्स ये पॉसिबल नहीं है कि चाइल्ड का सभी एट्रीब्यूट्स को हम मेजर करेंगे। इट इज डिफिकल्ट, इट मीन्स वी कैन नॉट मेजर द होल ऑफ एन एट्रीब्यूट ऑफ एन इंडिविजुअल। जितना इंडिविजुअल का जितना एट्रीब्यूट्स है हम मेजर करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए इट कन्वेज ए सेंस ऑफ इंफिनिटी। उसका सपोज होल ऑफ एन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट क्या है? उसका एटीट्यूड, एफिशिएंसी, एबिलिटी, पोटेंशियलिटी, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये सभी ये पॉसिबल नहीं है कि सभी एट्रीब्यूट्स को इट मीन्स एक ही टाइप समय में मेजर किए हम कर पाएंगे। इट मीन्स वी कैनॉट मेजर द होल ऑफ एन एट्रीब्यूट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड वन। फोर्थ वन, इट इज ए प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सिंबल्स। ये भी बहुत कॉमन चीज है, मैं अभी बोला था, जो जब क्रिकेट मैच होता है, जो इंडियन
प्लेयर्स का जर्सी में सिंबल होता है। हम ये नहीं सोचेंगे जो नंबर 1 जर्सी के ऊपर है तो वो सभी समय फास्ट स्पॉट में बैटिंग करेगा, कि एक प्लेयर के ऊपर सपोज 6 है, वो 6th स्पॉट में बैटिंग करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल रूल्स है तो वहां पर सिंबल ओके असाइन किया जाता है। तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सिंबल्स। मेजरमेंट इट इज ए प्रोसेस ऑफ असाइनिंग सिंबल्स। ओके, so measurement is a process of assigning symbols to observations in some meaningful and consistent manner. In measurement, generally we compare with certain standard unit or criteria which have an universal acceptability. फिफ्थ वन देखेंगे, इट कैनॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। एजुकेशनल मेजरमेंट जो है उसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाएंगे। हमको चाइल्ड का बिहेवियर को स्टडी करना है। चाइल्ड का बिहेवियर को जब हम स्टडी करेंगे तब हम मेजर कर पाएंगे कि उसका एबिलिटी क्या है, उसका एफिशिएंसी क्या है, उसका स्किल पावर क्या है। तो भाई इन केस ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट वी कैनॉट मेजर फॉर एट्रीब्यूट डायरेक्टली, इट इज ऑब्जर्व थ्रू बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ही रीडिंग एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कैन ओनली बी मेजर्ड व्हेन इज आस्क्ड टू रीड और रिटन मटेरियल। जब हम रीडिंग एबिलिटी को मेजर करेंगे कोई इंडिविजुअल का, तब हम उसको बोलना पड़ेगा तो एक पैराग्राफ उसको रीड करना है। ओके, व्हेन ही इज आस्क्ड टू रीड ए रिटन मटेरियल। समझ में आ रहा है? तो हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाएंगे, जब उसका बिहेवियर को हम मेजर करेंगे। जैसे हम रीडिंग एबिलिटी, we want to judge the reading ability of the student, then we must ask the student, first you read the paragraph, you read the written material। समझ में आ गया? ये फिफ्थ वन है। और लास्ट वन है, इट इज ए मीन्स टू एन एंड बट नॉट एन एंड itself। The objective of educational measurement is not just to measure a particular attribute. It is not just to measure a particular attribute. Rather, it is done to evaluate to what extent different objectives have been achieved. हम ऐसा नहीं है कि ओनली एक एट्रीब्यूट को हम मेजर करेंगे, उसमें हमको देखना है कि टू व्हाट एक्सटेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड। हम ये इवैल्यूएट करेंगे कि डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया गया है कि नहीं। ओके, तो ये जो ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको अच्छे से रिमेंबर करना है। नेक्स्ट वन, स्केल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केल्स और लेवल्स ऑफ मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें 4 स्केल्स आर देयर, राइट? 4 स्केल्स आर देयर। फर्स्ट वन नॉमिनल लेवल और नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल में क्या है? ये सबसे सिंपलेस्ट स्केल है। 4 स्केल से, एक नॉमिनल है, एक ऑर्डिनल है, ओके, थर्ड वन इंटरवल है, फोर्थ वन रेशियो स्केल है। स्केल के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन आता है एजुकेशनल मेजरमेंट में। तो जो नॉमिनल स्केल है तो ये सिंपलेस्ट स्केल है और लोएस्ट ऑर्डर स्केल उसको बोलते हैं। एक सिंपल स्केल है, इसको सिंपल लेवल बोलते हैं, और लोएस्ट ऑर्डर लेवल है ओनली फॉर क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और कैटेगरीज। ये इसके ऊपर थोड़ा, सपोज मेल फीमेल, मेल सपोज 1 है, फीमेल 2 है, ये नहीं बोलेंगे कि मेल डोमिनेंट है, जो फीमेल है वो डोमिनेंट नहीं है। इसमें ओनली सिंबल है। सपोज आप फर्स्ट फीमेल रख सकते हो, सेकंड में मेल रख सकते हो, तो इसको क्लासिफाई कर देंगे, कैटेगरी कर देंगे, जो आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, यहां पर लेटर्स और नंबर्स आर असाइन्ड एज लेबल्स ओनली। यहां पर जो जैसे प्लेयर के पीछे में जो सिंबल्स दिया जाता है, ठीक है, कि जो लेबल होता है, ये नहीं है कि हम वो बेस्ट प्लेयर को देखकर हम उसको वो नंबर 1 जर्सी पहनेगा बेस्ट प्लेयर, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्सल रूल है, तो प्लेयर्स को एक सिंबल दिया जाएगा। तो भाई ये लेटर्स और नंबर्स आर असाइन्ड एज लेबल्स ओनली, कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, नो रोल ऑफ मैग्नीट्यूड, नो ऑर्डर। यहां पर भी कोई ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं है, जो फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। एग्जाम्पल जैसे बताया, कैटेगरी जो क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, कैटेगरीज मेल फीमेल, ठीक है, सिंपल मेल फीमेल, क्योंकि ये जो स्केल है ये ज्यादातर क्वालिटी को इंपॉर्टेंस देता है। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉमिनल डाटा इंक्लूड आई कलर, की कंट्री ऑफ बर्थ, ये सब आ जाता है नॉमिनल डाटा में। ठीक है, इट इज क्वालिटेटिव,
द नंबर्स आर यूज्ड हियर टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स। ओनली नंबर उसमें असाइन किया जाता है ओनली ऑब्जेक्ट को आइडेंटिटी करने के लिए। जैसे प्लेयर के पीछे में जर्सी नंबर दिया जाता है, हम ये नहीं बोलेंगे कि जैसे सपोज एक जर्सी के पीछे 3 लिखा गया है और वो सपोज एक बैट्समैन, एक प्लेयर के पीछे में 3 है कि वो थर्ड स्पॉट में बैटिंग करने के लिए आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यूनिवर्सल लेवल में उसको आइडेंटिफाई करने के लिए प्लेयर को एक नंबर दे दिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल स्केल, इट इज मेल फीमेल, सिंपल। हम असाइन करेंगे, मेल को सपोज 1 करेंगे, यहाँ पर फीमेल को 2 करेंगे। ये नहीं है कि हम बोलेंगे मेल 1 में है तो मेल डोमिनेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये भी कर सकते हैं, हम फर्स्ट में फीमेल रखेंगे और सेकंड में मेल रखेंगे, कोई ऐसा कुछ ये नहीं। तो एक सिंबल, एक कैटेगराइज कर देते हैं जेंडर के हिसाब से, मेल फीमेल। आई का कलर को हम कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ये नॉमिनल स्केल है, लोअर ऑर्डर स्केल है, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है। ओके, द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट अरेंज्ड इन ऑर्डर, ऐसा कुछ ऑर्डर में फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक ऐसा नहीं है। जैसे रिजल्ट निकलने के बाद हम स्टूडेंट्स का रैंक करते हैं, ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं है। ये बहुत सिंपल है और ओनली आइडेंटिफिकेशन और कैटेगरीज के लिए हम यहाँ पर सिंबल असाइन करते हैं। ओके, यूनिवर्सल लेवल में मगर जब सिंबल असाइन होगा, ऐसा कुछ ऑर्डरली सिंबल असाइन नहीं होगा। ठीक है, ये सिंपल है। सेकेंड स्केल को चलेंगे, ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल क्या है? जो भी फीचर था जो नॉमिनल स्केल में, वो सब फीचर आएगा मगर यहाँ पर ऑर्डर इज प्रेजेंट। नॉमिनल स्केल, सभी नॉमिनल स्केल का कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा मगर यहाँ पर ऑर्डर होगा, ऑर्डर के हिसाब से अरेंज किया जाएगा। यहाँ पर मैग्नीट्यूड, रोल ऑफ मैग्नीट्यूड दिया है। जैसे रैंक हम बोलेंगे, सपोज फर्स्ट रैंक और 14th रैंक, ऐसे होता है। रिजल्ट के बाद एक स्टूडेंट का फर्स्ट रैंक है 14, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड आ गया। तो जो फर्स्ट स्टूडेंट है, फर्स्ट स्टूडेंट, ओके, और 14th स्टूडेंट, तो उसमें मैग्नीट्यूड आ गया ना, डिफरेंस आ जाएगा। जो 14th स्पॉट में है बेसिकली, वो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे ना, बेसिकली 13 रैंक्स, ओके, बिलो देन द फर्स्ट वन, 13 रैंक्स बिलो देन द फर्स्ट वन, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर आ गया। और नो, ऐसा कुछ इंटरवल यहाँ पर नहीं है। इंटरवल क्या है? सपोज 0 to 10, ऐसा कोई इंटरवल हो 0 to 10 कि 10 to 20 इक्वल इंटरवल, ऐसे होता है। 0 to 10 मार्क, 10 to 20 मार्क, यहाँ पर इंटरवल आ जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ इंटरवल नहीं है, नो इंटरवल इज देयर। ये जो है रेटिंग स्केल्स आता है। रेटिंग स्केल्स में क्या है? ऑर्डरली अरेंज किया जाता है, रैंक किया जाता है। ओके, ऑर्डरली अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड और रैंकिंग पोजीशंस, इसी को बोलते हैं लिकर्ट स्केल। ओके, द आइटम्स ऑफ क्लियर रैंक ऑर्डर, एक ऑर्डर होता है रैंक में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके, बट डू नॉट हैव इवन डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो इसी को हम लिकर्ट स्केल बोलेंगे। ओके, रेटिंग स्केल्स, तो अरेंज किया जाएगा, ऑर्डरली अरेंज किया जाएगा रैंक के हिसाब से। एग्जाम्पल यहाँ पर ऑर्डिनल स्केल, रैंकिंग ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और रेटिंग्स इन रेस्टोरेंट्स, रेस्टोरेंट्स में हम जो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स है उसको हम रेटिंग करेंगे कि कौन फर्स्ट रैंक में आएगा, कौन सेकंड में, कौन थर्ड में, कौन फोर्थ में। ये ऑर्डिनल स्केल है। यहां पर दिया है, देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर होता है एवेलुएटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंसेस, वेरी ऑफन, ऑफन, नॉट ऑफन, नॉट एट ऑल, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंसेस, कितना बार वो एक्चुअली अकर्ड हुआ है। और असेसिंग द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट, डिग्री टोटली एग्री, एग्री, न्यूट्रल कि डिसएग्री, टोटली डिसएग्री। तो इस तरीके का मैटर में ये भी किसमें आता है ना, ऑर्डिनल स्केल। ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, राइट। अभी चलेंगे इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल क्या है? जैसे मैं अभी बताया था, जो मार्क्स है कि सपोज 0 to 10, ये से मार्किंग कर देंगे। सपोज देखिए, सपोज यहां पर मार्किंग में कर दिया 0 to 9 कि 10 to 19 कि 20 to 29, ऐसे जो इंटरवल होता है उसका जो क्लास साइज समान होता है, उसका क्लास साइज समान होगा 0 to 9, 10। तो 0 to 9 मीन्स बोथ लोअर लिमिट अपर लिमिट इंक्लूड होगा। ओके, दोनों इंक्लूड होगा तो 10 हो गया। यहाँ पर 10 to 19 लोअर लिमिट अपर लिमिट बोथ इंक्लूड होगा, तो यहाँ पर भी 10 हो गया। तो वही जो इंटरवल स्केल में ऑर्डिनल स्केल कैरेक्टर, ऑर्डिनल स्केल में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रहेगा, ऑर्डरली रहेगा। जैसे बोला 0 to 9, वो ऑर्डर में रहा 10 to 19, 20 to 29। कि मैं ऐसे एक और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे 0 to 10, 10 to 20,
इसमें अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होगा। 0 लेस देन 10 इसको बोलेंगे 10, यहां पर 10 इंक्लूड होगा, 10 लेस देन 20। समझ में आ गया? तो ये सब जो इंटरवल है वो सेम है, 10-10 है, क्लास साइज जो है क्लास साइज सेम है। तो भाई ये इक्वल इंटरवल्स हो रहा है, इक्वल इंटरवल्स। यहां पर जो फर्स्ट 0 to 10 है, 0 लेस देन 10 मार्क, 10 लेस देन 20 मार्क। ओके, 10 इंक्लूड होगा लेस देन 20, तो उसमें जो क्लास साइज हो जाएगा, जो इंटरवल हो जाएगा वो सब इक्वल। यहां पर 10 है, यहां पर 10 है। तो ये आ गया क्वांटिटेटिव आ गया। जब हम इंटरवल स्केल में अरेंज कर देते हैं, वही ऑर्डरली होता है, तो यहां पर ये क्वांटिटेटिव आ जाता है। फर्स्ट टू स्केल्स क्वालिटेटिव है, मगर जो थर्ड इंटरवल है, इंटरवल स्केल, ये क्वांटिटेटिव है। इट कैन क्वांटिफाई द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज। ये यहां पर हम डिफरेंस निकाल पाएंगे, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज। ठीक है, इट अलाउज कैलकुलेटिंग द मीन एंड मीडियन। इसमें हम मीन मीडियन निकाल पाएंगे। टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द वेरिएबल्स यू कैन सब्ट्रैक्ट द वैल्यूज बिटवीन द वेरिएबल्स। यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। जैसे हम ये बताया कि 0 to 10, यहाँ पर 10 - 0, कि 10 to 20, 20 - 10, ऐसे हम क्लास साइज निकाल पाएंगे। ओवरऑल जो लिकर्ट स्केल है, समटाइम्स इसको हम सपोज आपको लिकर्ट स्केल जैसे बताया ऑर्डिनल स्केल है, और वहां पर कोई मैथमेटिकल डाटा नहीं रहेगा। जब मैथमेटिकल डाटा रहेगा, यहां पर देखिए ओवरऑल लिकर्ट स्केल स्कोर्स आर समटाइम्स ट्रीटेड एज इंटरवल डाटा। दीज स्कोर्स आर कंसिडर्ड टू हैव डायरेक्शनली एंड इवन स्पेसिंग बिटवीन देम। तो लिकर्ट स्केल क्या है? जब मैथमेटिकल डाटा आ जाता है तब हम, जो लिकर्ट स्केल है वो इंटरवल स्केल है। जब मैथमेटिकल डाटा नहीं है तो तब वहां पर हम किसको बोलेंगे ना, ऑर्डिनल स्केल को हम लिकर्ट स्केल बोलेंगे। आपको दो चीज याद रखना है, जब कोई मैथमेटिकल डाटा नहीं है तब ऑर्डिनल स्केल को हम लिकर्ट स्केल बोलेंगे। मगर जब कोई मैथमेटिकल, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ गया कि हम मीन मीडियन निकाल पाएंगे, ये जो क्लास इंटरवल से, ओके, यहां पर जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन आएगा और वहां पर लिकर्ट स्केल इंटरवल स्केल है, इसको आपको याद रखना है। एग्जाम्पल ये सब है जो इंटरवल स्केल का, लिकर्ट स्केल है, नेट प्रमोटर स्केल है, बाइपोलर मैट्रिक्स टेबल है। और आपको भी क्वेश्चन पूछेंगे कि सर ऑर्डिनल स्केल लिकर्ट स्केल था, यहां पर भी लिकर्ट स्केल हो गया। मैं अभी बताया कि ऑर्डिनल स्केल में कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं था। जब कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है तब हम, इसीलिए हम ऑर्डिनल स्केल को लिकर्ट स्केल बोलेंगे। और यहां पर क्या है, जब कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ जाएगा, इंटरवल्स आ गया, तो यहां पर जब क्लास इंटरवल आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया, यहां पर क्लास इंटरवल आ गया और फ्रीक्वेंसी आ गया, 0 to 10, 10 to 20, ऐसे यहां पर फ्रीक्वेंसी आ गया, तो हम यहां पर मीन मीडियन निकाल पाएंगे। तो इस केस में एक्चुअली आपका इंटरवल स्केल को हम लिकर्ट स्केल बोलेंगे। जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन आएगा, ओके, मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहां पर आएगा इंटरवल स्केल में, तो उसको लिकर्ट स्केल बोलेंगे। जहां पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं आएगा तब हम ऑर्डिनल स्केल को लिकर्ट स्केल बोलेंगे। तो एग्जांपल लिकर्ट स्केल, नेट प्रमोटर स्केल, बाइपोलर मैट्रिक्स टेबल, तो ये सब है। जैसे टेम्परेचर, यहां पर देखिए ये टेम्परेचर इन डिग्रीज फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की, IQ स्कोर की, इनकम, ये $30 to $39,000 की, $40 to $49,000 ऐसे दिया है। $30,000 to $39,000, $40,000 to $49,000, ये सब है इंटरवल स्केल है। यहां पर दिया है, देखिए, द लिकर्ट स्केल इज वाइजली यूज्ड इन सोशल वर्क रिसर्च, इसको याद रखना है। ये जो लिकर्ट स्केल है इसको हम बेसिकली सोशल वर्क रिसर्च में यूज करते हैं, एंड इज कॉमनली कंस्ट्रक्टेड विथ 4 to 7 पॉइंट्स होता है। इट इज यूजुअली ट्रीटेड एज एन इंटरवल स्केल। ओके, इसको भी हम कभी इंटरवल स्केल बोलेंगे, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट इज एन ऑर्डिनल स्केल व्हेन मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैन नॉट बी कंडक्टेड। यदि मैथमेटिकल ऑपरेशंस कंडक्ट नहीं होगा तब हम ऑर्डिनल स्केल को लिकर्ट स्केल बोलेंगे, मगर जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन कंडक्ट होगा तब हम इंटरवल स्केल को लिकर्ट स्केल बोलेंगे। और बेसिकली ये सोशल वर्क रिसर्च में यूज होता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं जो लिकर्ट स्केल के ऊपर, जब हम जो पॉइंट्स देंगे, यहां पर पॉइंट्स आता था, जब पॉइंट्स अब दे देंगे, सपोज यहां पर ऐसे पॉइंट्स दे देंगे 4 to 6, ओके, कि 7 to 9 ऐसे पॉइंट दे देंगे, ठीक है। और पॉइंट देने के बाद यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ गया, यहाँ पर सपोज क्लास इंटरवल फॉर्म में आ गया, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ गया, तो हम मीन मीडियन निकाल पाएंगे। तो जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन आएगा तब लिकर्ट स्केल को हम
इंटरवल स्केल को हम लिकर्ट स्केल बोलेंगे, मगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं आएगा और उस केस में हम ऑर्डिनल स्केल्स को लिकर्ट स्केल बोलेंगे। इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट रेशियो स्केल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो स्केल में क्या है ना, इंटरवल स्केल का सभी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा मगर यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो होगा। देखिए आप जो टेम्परेचर बात आता है, जैसे हम इंटरवल स्केल में देखेंगे कि यहाँ पर जैसे -20 डिग्री सेल्सियस कि -30, यहाँ पर जैसे -10 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, देन 10 डिग्री सेल्सियस, देन 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जो 0 डिग्री, हम ये नहीं बोलेंगे जो इंटरवल स्केल में कि 0 डिग्री सेल्सियस, ये नहीं बोलेंगे कि कोई टेम्परेचर नहीं है। हाँ, कूल क्लाइमेट है, क्लाइमेटिक कंडीशन कूल होगा, मगर यह नहीं कि 0 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर कोई टेम्परेचर नील है, ऐसा नहीं बोलेंगे इंटरवल स्केल में। समझ में आ रहा है कि नहीं? मगर यहाँ पर जो है रेशियो स्केल में एब्सोल्यूट जीरो आएगा, यहाँ पर कोई नेगेटिव नहीं आएगा, एब्सोल्यूट जीरो आ जाएगा। सपोज रेशियो स्केल में क्या है, कोई ऑब्जेक्ट को हम वेट कर रहे हैं, वो वेटलेस है, कोई ऑब्जेक्ट वेटलेस है तो वहां पर जीरो हो जाएगा, तो यहां पर एब्सोल्यूट जीरो आएगा। मगर इंटरवल स्केल में एब्सोल्यूट जीरो नहीं होगा, क्योंकि इंटरवल स्केल में जो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, इंटरवल स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस होगा, ये नहीं बोलेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस है तो कोई टेम्परेचर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो हाइपोथेटिकल होता है। मगर रेशियो स्केल में जब हम कोई ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करेंगे, वो वेटलेस है, तो वहां पर तो एब्सोल्यूट जीरो आएगा। तो वही है, तो रेशियो स्केल में आपको याद रखना है कि इंटरवल स्केल कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस पॉजेसिंग एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। इट डज नॉट हैव नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव नंबर्स नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ इट्स 0 पॉइंट फीचर, इसमें 0 पॉइंट फीचर, इसमें नेगेटिव नहीं आएगा, एब्सोल्यूट जीरो आ जाता है यहाँ पर। द वेरिएबल्स कैन बी ऑर्डरली एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड, डिवाइडेड, तो यहाँ पर हम मीन, मीडियन, मोड ये सब निकाल पाएंगे रेशियो स्केल में। और एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, व्हाट इज योर वेट इन केजीज, लेस देन 55 केजी, 55 to 65, 65 to 75 ऐसे। और रेशियो स्केल में क्या करेंगे, हम रेशियो में मेजर करेंगे, जैसे एक लेंथ और विड्थ है, ठीक है, लेंथ और विड्थ है, इसको हम मेजर करेंगे रेशियो स्केल में। सपोज ये लेंथ है, ये विड्थ है, ओके, ये सपोज 2 cm है, ये 3 cm, ये 3 cm है, ये 2 cm है, तो लेंथ टू, ये देखिए एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पर जैसे वेट हम मेजर करेंगे कि हाइट हम मेजर करेंगे, इसका हाइट मेजर करेंगे और इसका हाइट मेजर करेंगे, ये दोनों का रेशियो निकालेंगे, इसका हाइट और इसका हाइट, ये दोनों का क्या करेंगे हम रेशियो में मेजर करेंगे। सपोज इसका हाइट जो है सपोज 150 cm है और ये 160 cm है, तो यहाँ पर हम रेशियो स्केल में 150 to 160, तो यहाँ पर जो है रेशियो स्केल में आपको ओनली पॉजेसिंग एब्सोल्यूट जीरो होता है। जैसे इंटरवल स्केल में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पर लेना है और यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो लेना है, यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो लेना है, मगर जो इंटरवल स्केल में एब्सोल्यूट जीरो नहीं होगा। जैसे हम बोलते हैं कि -10 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, कि नेक्स्ट आएगा 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, ये इंटरवल स्केल में आएगा, इंटरवल स्केल में नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर जो 0 डिग्री सेल्सियस है, हम ये नहीं बोलेंगे कि हम ये नहीं बोलेंगे कि जो बेसिकली इंटरवल स्केल में कि जैसे हम इसे अरेंज कर दिया -10 डिग्री इंटरवल स्केल में, ये 0 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस ऐसे, तो यहाँ पर हम नहीं बोलेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स ऐसा कोई टेम्परेचर नहीं है, एक हाइपोथेटिकल है। मगर जो रेशियो स्केल में, ठीक है, रेशियो स्केल में क्या है, रेशियो स्केल में क्या है ना, सपोज एक ऑब्जेक्ट वो वेटलेस है, उसका वेट नहीं है, वहां पर एब्सोल्यूट जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर, पॉजेसिंग एब्सोल्यूट जीरो मीन्स रेशियो स्केल, ठीक है। हाइट, वेट ये सब मेजर करते हैं रेशियो स्केल में, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू ऑफ जीरो ये दिया है, वैल्यू ऑफ जीरो इन रेशियो स्केल मीन्स दैट वेरिएबल यू आर मेजरिंग इज एब्सेंट। Population is a good example of ratio data. If you have a population count of 0 people, कोई आदमी नहीं है, आप एक मीटिंग के लिए बुलाया, कोई आदमी नहीं है, तो वहां पर पॉपुलेशन क्या होगा, एब्सोल्यूट जीरो होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है, इफ यू हैव ए पॉपुलेशन ऑफ 50 people, यू कैन से दैट
दिस इज हाफ द साइज ऑफ द कम्युनिटी विथ ए पॉपुलेशन ऑफ 100, ये दिया है। तो ये जो रेशियो, इसका एग्जाम्पल, जैसे आपका पॉपुलेशन 50 पीपल है, ये बोलेंगे कि इट इज हाफ ऑफ द साइज ऑफ द कम्युनिटी विथ पॉपुलेशन, कम्युनिटी में 100 पीपल है और यहाँ पर अभी 50 पीपल प्रेजेंट है, हम उसको बोलेंगे कि हाफ ऑफ द, ओके, इफ यू हैव ए पॉपुलेशन ऑफ 50 पीपल देन इट इज हाफ ऑफ द साइज ऑफ द कम्युनिटी विथ पॉपुलेशन ऑफ 100। एक एग्जाम्पल में दे दिया। तो आपको याद रखना है रेशियो स्केल में जो भी इंटरवल स्केल का कैरेक्टरिस्टिक सभी रहेगा, मगर यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो आएगा। ठीक है, यहाँ पर दे दिया, देखिए कैटेगरीज, क्या लेबल्स जो करेंगे सभी में लेबल्स होगा, कैटेगरीज एंड लेबल्स वेरिएबल्स, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। रैंक जब आएगा, नॉमिनल में रैंक नहीं होगा, इसमें रैंक नहीं होगा, रैंक होगा ऑर्डिनल में, क्योंकि ऑर्डिनल का जो भी फीचर है वो इंटरवल में है। ठीक है, मगर यहाँ पर इंटरवल आ जाता है, एक मैग्नीट्यूड हम मेजर कर पाएंगे यहाँ पर, इंटरवल जैसे 0 to 10 कि 10 to 20 ऐसे। और रेशियो हैज नॉन इक्वल इंटरवल्स, इक्वल इंटरवल्स ओनली इंटरवल स्केल रेशियो स्केल में आएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरवल स्केल नहीं आएगा, यहाँ पर इंटरवल नहीं आएगा, राइट, दोनों में, नॉमिनल ऑर्डिनल में। और हैज ए ट्रू और मीनिंगफुल जीरो, मीनिंगफुल जीरो ओनली रेशियो स्केल में, एब्सोल्यूट जीरो, क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव नहीं है, एब्सोल्यूट जीरो, कोई ऑब्जेक्ट उसका वो वेट कुछ नहीं है, हम इसको एब्सोल्यूट जीरो देंगे। मीन मीडियन मोड इंटरवल स्केल में और रेशियो स्केल में हम मीन मीडियन मोड निकल पाएंगे। और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का बात आएगा, नॉमिनल ऑर्डिनल जो है वो एक्चुअली क्वालिटेटिव है, और यहाँ पर जो इंटरवल रेशियो आएगा वो क्वांटिटेटिव होगा, आपको याद रखना है। नॉमिनल, ऑर्डिनल, क्वालिटेटिव, इंटरवल, ओके, रेशियो में वो क्या होगा, क्वांटिटेटिव आएगा। ये थोड़ा इसको याद रखना है। अभी कुछ देखेंगे नीड्स फॉर एजुकेशनल मेजरमेंट, नीड्स को देखेंगे फॉर डायग्नोसिस। हम सपोज एक स्टूडेंट, उसको हम डायग्नोसिस करेंगे, तो यहाँ पर एजुकेशनल मेजरमेंट का जरूरत है, उसका कितना स्कोर है, थोड़ा स्कोर कम हो जाएगा, हम डायग्नोसिस करेंगे कि किस एरिया में, ओके, उसका किस एरिया के वजह से उसको कम मार्क मिला, किस एरिया में उसको वर्कआउट करना है। ओके, बेसिकली डायग्नोसिस के बाद आ जाता है, वो नीड है एजुकेशनल मेजरमेंट में। हम फर्स्ट वी डिटेक्ट द स्कोर, फर्स्ट वी जज द स्कोर, देन वी डिटेक्ट एक्चुअली in which area actually he is lagging behind and he has some problem, then on that area actually it means workout must be made for prediction। prediction का बात आता है एजुकेशनल मेजरमेंट, हम प्रेडिक्ट करते हैं कि अभी मेरा स्कोर 80% है, कैसे मेरा 85 रहेगा नेक्स्ट एग्जाम में, फिर नेक्स्ट एग्जाम में मेरा कैसे 90 रहेगा। वोकेशनल सिलेक्शन जो होता है वो भी मार्क के हिसाब से हम देखते हैं, हाँ इतना मार्क है तो उसको प्रोफेशनल एजुकेशन में डालेंगे। ठीक है, ज्यादा मार्क है, 90% मार्क है, वो इंजीनियरिंग में जाएगा कि मेडिकल में जाएगा। ऐसा हम वोकेशनल प्रोफेशनल सिलेक्शन हम करते हैं मार्क के हिसाब से। रिसर्च में हमको डाटा चाहिए, रिसर्च एक्टिविटीज में हमको डाटा चाहिए, और डाटा जो है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस है। कंपैरिजन का बात आएगा, सपोज दोनों क्लास ए क्लास बी, हम दोनों को कंपेयर करते हैं, उनका परसेंटेज, क्लास ए का ओवरऑल एवरेज 70% है, क्लास बी का, जैसे क्लास का ओवरऑल सब्जेक्ट एवरेज 70% है, क्लास बी का ओवरऑल सब्जेक्ट एवरेज क्या है 80% है, तो हम बोलेंगे क्लास बी इज बेटर देन क्लास ए, मगर किसके हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से। तो यहाँ पर भी क्वांटिटी का बात आ गया एजुकेशनल मेजरमेंट। एडमिशन, जब हम एडमिशन टेस्ट होता है, जो एडमिशन टेस्ट में क्वालिफाई करेगा वो उसका एडमिशन होगा, तो वहां पर फिर मार्क का बात आ गया। ठीक है, स्कोप में देखेंगे, जो द स्कोप ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट इंक्लूड मेजरमेंट ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट, क्या किस तरीके का एट्रीब्यूट्स को हम मेजर करते हैं, व्हाट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ द चाइल्ड ओके शुड बी मेजर्ड, तो उसका इंटेलिजेंस, उसका अचीवमेंट, उसका इंटरेस्ट, ability, aptitude and other traits of the students using various tests and other tools, और various टेस्ट के other tools है जो हम क्या करेंगे, एक स्टूडेंट का अचीवमेंट को, इंटेलिजेंस को, इंटरेस्ट को, एबिलिटी को, एप्टीट्यूड को मेजर करेंगे। तो यहाँ पर भी स्कोप पे आ गया, वो ये है स्कोप ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट, राइट। अभी कुछ क्वेश्चंस को चलेंगे। अरेंज द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल जो है बहुत सिंपल है नॉमिनल स्केल, नॉमिनल के बाद ऑर्डिनल, हम ऑर्डर में, यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं है, यहाँ पर ओनली क्या है, असाइन किया, सिंबल्स असाइन किया जाएगा, और सिंबल जो असाइन किया जाता है ओनली
कैटेगराइज के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। फिर ऑर्डर आ जाएगा ऑर्डिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, वो भी मैं डिस्कस किया, और देन रेशियो स्केल। अभी आंसर देख लीजिए, ट्रिपल आई, आई वी, डबल आई, आई, तो आंसर इज बिट सी, ये करेक्ट है, राइट। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सबसे कॉम्प्लेक्स, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है वो रेशियो स्केल है, और जो सिंपलेस्ट स्केल है वो नॉमिनल है। क्वेश्चन नंबर 8 को चलेंगे, ये बहुत इजी है। नॉमिनल स्केल इज द फर्स्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केल इन विच द नंबर्स सर्व एज टैग्स और लेबल्स टू क्लासिफाई, राइट। जब हम ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए जब हम टैग्स और लेबल्स का यूज करेंगे, तो वो इसमें किस में आएगा? नॉमिनल स्केल। बेसिकली नॉमिनल स्केल में जो सिंबल असाइन किया जाता है, कि जो टैग्स को असाइन किया जाता है, कि जो लेबल्स को असाइन किया जाता है, क्यों किया जाता है? टू क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट, इजीली टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट। जैसे प्लेयर का पीछे में जो जर्सी का नंबर होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसका जर्सी में 1 है वो सबसे बेस्ट प्लेयर है, ऐसा कुछ नहीं। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिवर्सल रूल के हिसाब से जर्सी के ऊपर नंबर होता है, ये नॉमिनल स्केल है। आंसर इज बिट सी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच स्केल रैंकिंग ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स, रैंकिंग का बात आता है तो ऑर्डिनल स्केल, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो रैंक का बात आएगा, फर्स्ट ये आ जाएगा, फर्स्ट की सेकंड, ये जो रैंक आ जाता है ये ऑर्डिनल स्केल में, ठीक है। और यहां पर मैग्नीट्यूड है, क्योंकि आप देखिए फर्स्ट पोजीशन और 10th पोजीशन मैग्नीट्यूड है, तो जो 10th पोजीशन में वो 9 रैंक्स लो देन द फर्स्ट रैंक, नहीं, तो ये ऑर्डिनल स्केल है, और यहां पर मैग्नीट्यूड है ऑर्डिनल स्केल में। क्वेश्चन नंबर 10, द डैश इज वाइडली यूज्ड इन सोशल वर्क, मैं बोला था सोशल वर्क रिसर्च, एंड इज कॉमनली कंस्ट्रक्टेड विथ 4 to 7 पॉइंट्स, ये लिकर्ट स्केल। आंसर इज बिट ए, सोशल वर्क रिसर्च में यूज होता है और कॉमनली कंस्ट्रक्टेड विथ 4 to 7 पॉइंट्स ऐसे होता है, ठीक है, उसको लिकर्ट स्केल हम बोलेंगे। और जहां पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है तो बेसिकली उस समय ऑर्डिनल स्केल को हम लिकर्ट स्केल बोलेंगे। जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ जाएगा तब हम इंटरवल स्केल को लिकर्ट स्केल बोलेंगे। आंसर इज बिट ए। क्वेश्चन नंबर 11, एब्सोल्यूट जीरो का बात है, इंटरवल स्केल पॉजेसिंग एब्सोल्यूट जीरो, यहां पर एब्सोल्यूट जीरो नहीं है इंटरवल स्केल में, क्योंकि यहां पर मैं अभी बताया था, तो -10 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, कि 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, एक केस में जो 0 डिग्री सेल्सियस है हम ये नहीं बोलेंगे पूरा टेम्परेचर नील है, हाँ थोड़ा कूल क्लाइमेट है, मगर यहाँ पर टेम्परेचर पूरा नील नहीं है, तो इंटरवल स्केल पॉजेसिंग इंटरवल स्केल एब्सोल्यूट जीरो नहीं होगा, ये गलत है। और रेशियो स्केल इज द कॉम्प्लेक्स लेवल, ये करेक्ट है, जो रेशियो स्केल है वो कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ मेजरमेंट है, ये करेक्ट है, क्योंकि सिंपलेस्ट है नॉमिनल, देन ऑर्डिनल, देन इंटरवल और देन रेशियो स्केल, सबसे कॉम्प्लेक्स रेशियो स्केल होगा, और सबसे सिंपलेस्ट स्केल जो होगा वो नॉमिनल स्केल होगा। तो जो सेकेंड वन है वो करेक्ट है, आंसर इज बिट बी, सेकेंड वन करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 12, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल आर क्वांटिटेटिव, नो, नॉमिनल ऑर्डिनल ये जो है वो क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है, और इंटरवल स्केल रेशियो स्केल क्वालिटेटिव है, नहीं ये क्वांटिटेटिव, दोनों रॉन्ग है। जो नॉमिनल ऑर्डिनल है वो क्वांटिटेटिव है, वो क्वालिटेटिव है, और इंटरवल रेशियो वो क्वांटिटेटिव है, क्योंकि यहाँ पर ओनली आइडेंटिफिकेशन के लिए ओनली हम क्या करते हैं, नंबर दे देते हैं। जैसे नॉमिनल जो स्केल होता है, नॉमिनल स्केल में हम मेल फीमेल ऐसे नंबरिंग करते हैं, मेल की सेकेंड वन, फीमेल, नॉमिनल स्केल में, और ऑर्डिनल स्केल में हम रैंक कर दे, फर्स्ट सेकेंड, ये सब क्वालिटी होता है, ओके। मगर इंटरवल स्केल में जैसे 0 to 10 की 10 to 20, 20 to 30, ये सब इंटरवल रेशियो स्केल वो क्या है ना, क्वांटिटेटिव है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। नॉमिनल ऑर्डिनल स्केल, नॉमिनल स्केल ऑर्डिनल स्केल वो क्वालिटेटिव होते हैं, और इंटरवल रेशियो स्केल वो क्वांटिटेटिव होते हैं। क्वेश्चन 13, व्हिच लेवल ऑफ मेजरमेंट हैज ए ट्रू और मीनिंगफुल जीरो, अभी मैं बताया था मीनिंगफुल जीरो, ट्रू जीरो मीन्स वो रेशियो स्केल है, ठीक है, क्योंकि रेशियो स्केल में हम हाइट मेजर करेंगे, 2 स्टूडेंट्स का हाइट, कि 2 स्टूडेंट्स का वेट, ये सब मेजर करते हैं रेशियो स्केल में, मगर यहाँ पर एब्सोल्यूट जीरो होगा। सपोज एक ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट है जो वेटलेस है, उसका एब्सोल्यूट जीरो होगा, वेट नहीं, तो रेशियो स्केल में एब्सोल्यूट जीरो होता है।
आंसर इज बिट ए। क्वेश्चन 14, हैप्पीनेस ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10, दिस इज व्हाट इज नोन एज। हैप्पीनेस को हम मेजर करते हैं, जैसे रेटिंग स्केल होता है 1 to 10, कि स्टूडेंट को हम जो कम देखते हैं मेजर करते हैं, हम इसे मार्किंग करेंगे स्टूडेंट्स को। एक वीक में हम क्या करेंगे ना, स्टूडेंट्स का हैप्पीनेस को मेजर करेंगे और उनको स्केल मार्क भी देंगे, स्कोर भी देंगे 1 to 10 मार्क। लोएस्ट मार्क 1 है, मैक्सिमम मार्क 10 है। तो ये जो है वो लिकर्ट स्केल है। आंसर इज डी, राइट। क्वेश्चन 15, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्डर ऑफ वेरिएबल एंड यूजेस इक्वल यूनिट्स। तो दोनों आ गया, ऑर्डर्स प्लस इक्वल इंटरवल, तो इंटरवल स्केल है। आंसर इज बिट बी, क्योंकि दोनों आ गया, ओनली ऑर्डर नहीं, ऑर्डर एंड यूजेस इक्वल यूनिट्स। इक्वल यूनिट्स मींस इक्वल इंटरवल, ठीक है, इंटरवल स्केल है। आंसर इज बिट बी। क्वेश्चन 16, डैश इन्वॉल्व्स कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। आप स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन देखिए सिंगुलर सेंस में। स्टैटिस्टिक्स का सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट वन, कलेक्ट द डाटा, देन ऑर्गेनाइज द डाटा, देन एनालिसिस द डाटा एंड ओके न्यूमेरिकल डाटा। फर्स्ट हम कलेक्ट करेंगे, इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, जैसे टेबल में, टेबल के बाद उसको हम ग्राफ में, ठीक है, तो उसको प्रेजेंट किया जाएगा। फर्स्ट कलेक्ट किया जाएगा, देन उसको टेबल में अरेंज किया जाएगा, टेबल के बाद उसको ग्राफ्स, डायग्राम्स में प्रेजेंट किया जाएगा, और एनालिसिस जब हो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जैसे मीन, मीडियन, मोड, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब आ जाता है, वही है। तो ये जो आंसर है डी है, स्टैटिस्टिक्स है। आंसर इज बिट डी, ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व्स द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 17, ए रेशियो स्केल इंक्लूड्स इंटरवल स्केल विथ ए ट्रू 0 पॉइंट है। बढ़िया, रेशियो स्केल, इंटरवल स्केल का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रेशियो स्केल में आ जाएगा, और 0 पॉइंट, एब्सोल्यूट 0 पॉइंट भी, तो ये ट्रू है। आंसर इज डी। समवॉट ट्रू, समवॉट फॉल्स, फॉल्स ट्रू, तो एब्सोल्यूट ट्रू है। आंसर इज डी। क्वेश्चन 17। क्वेश्चन नंबर 18, यूजुअली न्यूमेरिकल एंड इज द रिजल्ट ऑफ ए मेजरमेंट। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जो है यूजुअली न्यूमेरिकल है एंड इज द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट, इट इज डाटा। जो डाटा को हम जो प्रेजेंट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, वो न्यूमेरिकल में प्रेजेंट करेंगे, और उसका जो रिजल्ट होगा वो मेजरमेंट होगा, ठीक है। तो आंसर इज बिट ए। क्वेश्चन नंबर 19, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेक ए पर्टिकुलर मेजरमेंट। पर्टिकुलर मेजरमेंट का बात आएगा टेस्ट। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो होगा वो टेस्ट असेसमेंट के ऊपर होगा। आंसर इज बिट ए। तो पर्टिकुलर, स्पेसिफिक सब्जेक्ट को हम मेजर करना चाहते हैं, ओके, तो वहां पर एक टेस्ट को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन है, तब फिर कितना स्कोर मिला, तो पर्टिकुलर मेजरमेंट हम करते हैं कि किस लेवल में स्टूडेंट है। तो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेक ए पर्टिकुलर मेजरमेंट इज टेस्ट। पर्टिकुलर मेजरमेंट इज टेस्ट। आंसर इज बिट ए। क्वेश्चन नंबर 20, इन मेजरमेंट द फर्स्ट स्टेप। मेजरमेंट में फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है? मार्किंग ऑफ द टेस्ट, एडमिनिस्टरिंग, डेवलपमेंट, डिसीजन ऑफ व्हाट टू मेजर। आंसर इज बिट डी, डिसीजन ऑफ व्हाट टू मेजर। फर्स्ट हम डिसाइड करेंगे क्या हम मेजर करेंगे, फर्स्ट स्टेप। फिर हम उसके बाद क्या होगा, टेस्ट कंस्ट्रक्ट होगा। फर्स्ट हम डिसाइड करेंगे, ये सेकंड में आएगा। फर्स्ट हम डिसाइड करेंगे कि क्या हम मेजर करेंगे, फिर कंस्ट्रक्ट होगा, कंस्ट्रक्ट के बाद एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आएगा, फोर्थ क्या होगा, स्कोर ऑफ द टेस्ट। तो आपको याद रखना है, फर्स्ट हम डिसाइड करेंगे व्हाट टू मेजर, इसके बाद हम टेस्ट के लिए कंस्ट्रक्ट करेंगे, और फिर एग्जाम कंडक्ट होगा, वो एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा, फिर हम स्कोर दे देंगे, ठीक है। आंसर इज बिट डी, डिसीजन ऑफ व्हाट टू मेजर। क्वेश्चन 21, फ्रॉम द फॉलोइंग द राइट सीक्वेंस पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट सीक्वेंस क्या है? फर्स्ट वन टेस्ट होगा, फर्स्ट हम टेस्ट कंडक्ट करेंगे, टेस्ट के बाद मेजरमेंट आ गया, क्योंकि कितना स्कोर मिला, एग्जाम तो कंडक्ट हो गया, तो वो स्टूडेंट को कितना मार्क मिला, मैथ्स में कि साइंस में कि एसएसटी में कि इंग्लिश में,
ठीक है। तो टेस्ट के बाद क्या आएगा ना, मेजरमेंट आएगा। मेजरमेंट के बाद हम असेस करेंगे, मेजरमेंट के बाद असेसमेंट आएगा, ठीक है। अब उसको असेस करेंगे कि उसका लेवल क्या है, वो उसका जो स्टैंडर्ड है वो किस लेवल में है, असेस करेंगे। असेस के बाद वैल्यू जजमेंट का बात आएगा, एवेल्युएशन, उसका क्वालिटी को जज करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कि कितना स्कोर है, उसका रैंक क्या है, कितना स्कोर है, वो क्वांटिटी आ गया, ठीक है। फिर हम क्वालिटी का बात आएगा कि कौन सा रैंक, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जो रैंक आ गया वो क्वालिटी में आ गया, कितना मार्क मिला, कितना परसेंटेज मार्क मिला, वो क्वांटिटी। फिर हम वैल्यू जजमेंट करेंगे। तो वैल्यू जजमेंट में क्या होगा कि व्हाट टाइप ऑफ मेजर्स शुड बी टेकन टू हाइक हिज और हर परसेंटेज इन नियर फ्यूचर। तो ये जो होगा, तो बेसिकली आपको याद रखना है, टेस्ट होगा, ओके। टेस्ट के बाद क्या होगा ना, मेजरमेंट, ओके। मेजरमेंट के बाद होगा असेसमेंट, फिर असेसमेंट के बाद क्या होगा, एवैल्यूएशन। एवैल्यूएशन समझ में आ गया? तो ये चीज को आपको याद रखना है, ओके। टेस्ट, देन मेजरमेंट, देन असेसमेंट, देन एवैल्यूएशन। तो आंसर इज बिट ए। क्वेश्चन नंबर 22, डैश इज ए प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग। ट्रेड्स को हम क्वांटिफाई करेंगे, जब एट्रीब्यूट को हम क्वांटिफाई करेंगे, जैसे कि पर्सन का हाइट, वेट, कि ये जब मेजर करेंगे कोई ऑब्जेक्ट, सपोज हम लैंड का एरिया मेजर करेंगे, कि ग्लास में वाटर है उसका वॉल्यूम मेजर करेंगे। तो कोई भी ट्रेड को हम जब न्यूमेरिकल फॉर्म देते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग गिवन ट्रेड्स अचीवमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ समवन इज कॉल्ड मेजरमेंट, ठीक है। जब हम कोई एट्रीब्यूट्स को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करेंगे, उसका अचीवमेंट लेवल को देखेंगे, उसका परफॉर्मेंस को हम मेजर करेंगे, तो ये सब मेजरमेंट में आ जाता है। तो आंसर इज बिट बी, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23, मेजरमेंट इंक्लूड्स डैश प्रोसीजर। क्वांटिटी है, मेजरमेंट सभी समय एक्चुअली न्यूमेरिकली एक्सप्रेस होता है। जब हम कोई डाटा, ओके, जो कोई आंकड़ा हम कलेक्ट करते हैं, वो मेजरमेंट प्रोसेस में आ जाता है, तो क्वांटिटेटिव है, मेजरमेंट क्वांटिटेटिव है। आंसर इज बिट ए। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच प्रोसेस असाइन नंबर्स टू इंडिविजुअल। जो नंबर्स होता है, असाइन होता है इंडिविजुअल को, वो मेजरमेंट है। आंसर इज बिट ए, मेजरमेंट है, ओके। मेजरमेंट इज ए प्रोसेस टू असाइन नंबर्स टू इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल्स को नंबर असाइन किया जाएगा, ओके। जैसे मैच हो रहा है फुटबॉल की, क्रिकेट, जर्सी के पीछे जो नंबर होता है सब उसका यूनिवर्सल रूल के हिसाब से होता है, कि हम नहीं बोलेंगे बेस्ट प्लेयर है फर्स्ट रैंक, उसके सॉरी बेस्ट प्लेयर है उसका जर्सी नंबर 1 होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो ये मेजरमेंट है। आंसर इज बिट ए। क्वेश्चन 25, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिग्री टू व्हिच एन इंडिविजुअल प्रोसेसेस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, अगेन इट इज कॉल्ड मेजरमेंट। इसको याद रखिए, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ए न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन, a numerical description of the degree to which an individual possesses particular characteristics is called measurement. Answer is bit A. 26, which one is the process of finding the value of something? Okay, question number 26, finding the value of something. Value फिर आ गया, value means वो न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, finding the value of something means measurement. Answer is bit A. ओके, मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ समथिंग। तो वैल्यू का बात आ गया ना, पर्टिकुलरली हम वैल्यू जो है हम न्यूमेरिकली उसको एक्सप्रेस करेंगे, क्वांटिटी फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो ये मेजरमेंट है। 27, एजुकेशनल मेजरमेंट रिफर टू एनी डिवाइस फॉर द जनरल स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ टेस्टिंग, स्केलिंग एंड अप्राइजिंग द आउटकम्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, एजुकेशनल डेवलपमेंट, एजुकेशनल मॉडल, एजुकेशनल स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो आंसर है एजुकेशनल प्रोसेस है, ये करेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशनल मेजरमेंट रिफर टू एनी डिवाइस फॉर द जनरल स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ टेस्टिंग, स्केलिंग एंड अप्राइजिंग द आउटकम्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस, राइट, एजुकेशनल प्रोसेस। क्लियर? आंसर इज बिट ए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट? विलियम वर्समा, नॉर्मनी ग्रोनलुंड, एडवर्ड थॉर्नडाइक, हॉपकिंस। एडवर्ड थॉर्नडाइक। आंसर इज बिट सी। हु इज द फादर ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट? ना, एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो ये 28 क्वेश्चंस मेजरमेंट के ऊपर था। मेरा नेक्स्ट वीडियो
जो होगा वो टेस्ट असेसमेंट के ऊपर होगा और नेक्स्ट एवेल्युएशन के ऊपर होगा। सो विद इन 30th नवंबर में मेजरमेंट एवेल्युएशन पूरा कंप्लीट करके आपको दे दूंगा। यूपीएससी वाइस प्रिंसिपल एग्जाम है दिसंबर 11 में, और जो जितना कैंडिडेट से वो डिमांड किए थे, तो ये फर्स्ट पार्ट है, तो आपको डिमोरलाइज नहीं होना है। विद इन 30th November I will complete everything. Then my next video related to the test and assessment, the next one it is evaluation. ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल, लाइक माई चैनल, and basically definitely will get my upcoming PDFs. And also I think that from December 1 also I will upload it means some MCQs related to the GFR, General Financial Rule, okay, and other administrative part.